हेलो फॉक्स, मेरा नाम रोशन वर्मा है। आज मैं आपको स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो है इंग्लिश लर्निंग। कि हम सब लोग फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी तक भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ये सुन सुन के हमारे कान पक गए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कहीं इंटरव्यू देने जा नहीं सकता, मुझे नहीं आता, वो क्या पूछते मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बहुत सारे रीजन है। और एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हमारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब बेकार हो गई कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, जो कि बहुत बड़ा फियर है हमारी लाइफ के लिए। यू नो व्हाट? और इस फियर के लिए हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक का बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ अपना स्पेंड कर दिया है, लेकिन एक छोटी सी चीज, एक इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखने की वजह से हमारे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है कि हमने अपना जितना कुछ सीखा वो सब वेस्ट हो गया, टोटल वेस्ट। यू नो व्हाट? Whatever you learn in your life, even you study in your academic and your post graduation, graduation, everything that is just totally waste, even if you don't know English language. You know what? That is the biggest, and people take the biggest challenge to the learning the English. You know what? But I don't think so it is the biggest challenge. Whatever you learned around 10 books in each class, right? You study around the 10 books, but what of that English language, your English book, that is the drop to your whatever you learn. You know what? So today I will discuss the basic few tips that will enhance your English learning. Even you are also ready for your interview preparations as well. That will be more beneficially for your career oriented and other your personal life. So first of all, to be start this topic, you know what? We have to find out the reason why we are doing something, right? So you have to know the reason why I am learning English. You know, you have to find out first of all your reason why you want to learn English language. Okay, you have to select a strong reason behind the learning English. You have to select a strong reason to learn English. So what? That must be linked to your career. Okay, if you are in the suppose that you are in an executive profile and you have to be promoted the assistant manager or other next level positions, you need to be learn English, because of that all the communication has done in English language only. You know, so first it may be the reason. Second reason, you want to be impress your family or friends, even your girlfriend. A lot of people try to like doing the kind of activities. So it may be any reason. Okay, so you have to find out your reason why you want to learn your English. Why you want to learn English? You must find out a strong reason, because without a strong reason you can't learn anything. You will nothing done in your life without knowing a strong reason, guys. So you must have a strong reason to learn your English. So first of all, I would like to give you a few tips, one-to-one step. I have 10 tips. I think if you cover around, if you follow out of 5 or 10 out of 5, your English will be fantastic. Okay, so first of all, आज के टाइम में हम सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं. You know what? 10,000 15,000 रुपए स्पेंड करते हैं. स्मार्टफोन तो अच्छा ही चाहिए भैया, अच्छा कैमरा वाला चाहिए, अच्छी रैम चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए. लेकिन भाई स्मार्टफोन होने से आप थोड़ी स्मार्ट हो गए भाई, आपको भी स्मार्ट होना है ना. स्मार्टफोन आपको स्मार्ट बनाएगा. कैसे? आपको क्या करना है? यूट्यूब पे जाना है. यूट्यूब पे इंग्लिश लर्निंग काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है. आप जैसा सर्च करोगे काफी सारे फ्री कोर्स अवेलेबल. मैं आपको सब्सक्राइब वगैरह के लिए नहीं बोलूंगा. क्यों आप पे कर रहे हो भाई? जब फ्री में अवेलेबल है मटेरियल, तो व्हाई यू आर पेइंग दैट अमाउंट? यूटिलाइज इन अदर प्लेस. सो a lot of English courses are available in YouTube. Select any courses and starting from beginner to next level. Alright, so first thing, do that using your smartphone. Second thing, we are mostly fear even if we know English.
I know English. I'm a perfect in English, but I can't speak English. You know, what's the reason? Because of we are not familiar with English. We are not familiar with English. So to drop out your fear, आपको अपना fear निकालना है. इसके लिए start recording. Starting your video shooting and start your conversation in your video and post them. If whatever people will comment you, don't worry यार, लोगों के बोलने से क्या है, अपने इंग्लिश अगर सुधर रही तो भाई क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. तो आप ये कर सकते हैं, आप अपने लोगों से बुला लीजिए. प्लीज मुझे फीडबैक्स दीजिए जो मैं कर रहा हूँ, दैट इज राइट और रॉन्ग. और जो आपको कोई अच्छा टीचर वगैरह हो उसके साथ भी आप उनको शेयर कीजिए. यू विल गेट द बेटर आउटपुट. सेकंड है कि आप मिरर के सामने भी जाके आप अपने सेल्फ टॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि आप अपने आप से बात कर सकते हैं. आप अपने आप से बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अप होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं, हमारी जो सोच है वो एक ऐसी है कि अगर मैं किसी के सामने इंग्लिश गलत बोल दिया तो क्या होगा, क्या होगा, मारेगा क्या, नहीं यार ऐसा तो क्या होगा, कुछ पैसों का नुकसान होगा, नो वे यार, कुछ नहीं होगा. तो ये डर को एक बार निकालने के लिए आप अपने मिरर के सामने जाके सेल्फ टॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत अच्छा आइडिया है ये. ठीक है, इसके बाद में आप अपने जो फ्रेंड्स है, थर्ड जो पॉइंट है कि अपने जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स है, व्हाट्सएप फ्रेंड्स है, उनके साथ आप इंग्लिश में चैटिंग करना स्टार्ट कीजिए. बहुत अच्छा. अब चैटिंग के लिए वैसे भी टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड हो उसके साथ में भी आप इंग्लिश में चैटिंग करना स्टार्ट कीजिए. मजा आएगा भाई. गलत हो रहा है तो हो जाने दे यार, वो कौन सा तुम्हारी लाइफ लाइन के लिए है यार. अपनी इंग्लिश सुधर जाती है तो सबसे बेस्ट है ना, अपना करियर बन जाएगा तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. सो स्टार्ट योर चैटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. फोर्थ है कि हमें म्यूजिक जो सुनना है वो इंग्लिश में सुनना है, इंग्लिश म्यूजिक स्टार्ट करना है. हमें समझ में नहीं यार, मुझे भी पता है, नहीं समझ में आता, लिरिक्स वाले म्यूजिक स्टार्ट करो, उसको आप लर्न करो. देन आप अगेन उस गाने को अपना सिंगिंग स्टार्ट करो. उन गानों को आप इंग्लिश में ही सिंगिंग करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा. आप अपने आप में उस चीजों को माइंड में आपके चलता रहेगा, कॉन्शियस माइंड वो घूमेगा, वो बार बार वो वर्ड्स आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे. और क्योंकि वीडियोस लिरिक्स वाले होंगे तो उसमें आपको एक्टिविटी का पता लगे क्या बात बोलना चाह रही है, क्या चीज हो रही है, किस मोमेंट में क्या चीज वर्डिंग यूज हो रही है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग मेकिंग फॉरेन फ्रेंड्स. जो हमारे फेसबुक प्रोफाइल्स है उसके ऊपर हमें इंडियंस को छोड़ा, या तो इंग्लिश ट्यूटर वाले अच्छे उन लोगों से बात करो, या फिर फॉरेन फ्रेंड्स के साथ आप स्टार्ट चैटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, उनके साथ वीडियो कॉलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो. doesn't matter whatever the male or female, doesn't matter, we don't care about that matters. Okay, हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश सुधारनी है. हमारा मोटिवेशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है, इंग्लिश लर्निंग. डजंट मैटर लोग क्या बोलेंगे. ओके, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है वो है कि डिस्कसिंग करंट इश्यूज और अपने आइडियाज आप शेयर कर सकते हैं. आप अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ में जो इंग्लिश वाले हैं उनके साथ अपने आइडियाज शेयर कीजिए. जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में आपको जो बोलना है, आप अपनी कॉम्प्लेक्स अपने जो भी कमेंट्स है वो आप अपने उसके साथ में रिव्यूज दे सकते हैं. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है कि हमारा सबसे बड़ा लूज पॉइंट है वो हम जो सोचते हैं वो हिंदी मीडियम में ही है. सबसे बड़ा लूज पॉइंट हमारा, हम सोचते ही हिंदी मीडियम में. इस वजह से क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, आई एम, मैं जा रहा हूँ, एम जा रहा हूँ, गो आईएनजी लगाते जा रहा हूँ. ओके, आई एम गोइंग. तो ये चीज नहीं करनी. फ्लुएंटली आपको ट्राई करना है कि गलत होता हो जाने तो आई एम गोइंग, दैट्स इट. कि आप बोलो, क्योंकि बहुत बार मैं आपको देखता हूँ कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो फ्लुएंटली ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला को पता ही नहीं चलता गलत बोला है सही बोला. सामने वाला सोचता सही बोला होगा, फास्ट बोला है, कि मेरे से तो फास्ट ज्यादा है, तो उसको पता ही नहीं है कि उससे भी बहुत वीक है. ठीक है, आपको नेक्स्ट है कि आप एक डायरी रखनी है, उसमें जो न्यू वर्ड्स लर्निंग है आप उसमें नोट करना है, और डेली के 10 से 15 वर्डिंग्स न्यू आपको लर्न करने हैं. और आपको ज्यादा ओवरएक्ट नहीं करना है कि आपको कि नए वर्ड के साथ. बहुत बार हम क्या करते हैं कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ डिफिकल्ट वर्ड सर्च करना स्टार्ट करते हैं. नो, आपको जीरो से स्टार्ट करना है. और बहुत अच्छा है कि आप पोएम जो बच्चों की है वहां से भी आप अपनी इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं.
दोस्तों मैं आपको गाइडेड कर रहा हूँ कि आप 10 जो मैंने टिप्स बताई उसमें से अगर आप 5 भी आप फॉलो करके अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं हो जाए तो मेरी गारंटी है I am guided for that things. So start tuning into English. Yes, you are the genius now in English.